Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do last part of the chapter federalism. In last class we have understood you can say relations between states, tensions between states, on which issues there can be conflicts. Right? We have understood Kaveri water dispute. We have understood issue of Chandigarh between Punjab and Haryana. So there were lot of issues which we have discussed in last class. Okay, so on the behalf of that particular thing that we have discussed in last class, that is asked from you, why do states want more autonomy? State ज़्यादा autonomy क्यों चाहते हैं? Think upon the reason. अब देखो what they think, what is the mentality of the states, that they are depending upon the center for lot of the things, right? And because some states are very big also on the basis of areas, on the basis of population also, so they think that we are not getting enough representation, right? And because they want to show that we are also powerful, and that is the basic reason that they try to get more and more autonomy, right? हमेशा वो यही कोशिश करते कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा freedom मिल जाए एक टाइप से. In that basis also, in social basis also, political basis also, economic basis also, मेरे को कई states पे मतलब किसी और state पे या फिर मेरे को center पे dependent ना रहना पड़े. That is the reason, right? Along with that, what is the difference between autonomy and secession? इसके बीच में difference देखो, autonomy का मतलब होता है freedom, समझा? And secession का मतलब होता है separate हो जाना. अब आपसे यही पूछा गया है कि what is the difference between this? अब देखो हमारे स्टेट्स हमेशा किस चीज की डिमांड करते हैं? दे आर डिमांडिंग फॉर मोर पावर्स, दैट इज ऑटोनॉमी, दैट इज नो सेसेशन. सेसेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्टेट ये डिमांड करे कि नहीं, इंडिया के साथ मेरे को तो रहना ही नहीं है, हमें नहीं रहना इंडिया के साथ, एंड वी वांट टू बी सेपरेट नाउ, वो होता है स्टेट अलग हो जाना. तो ये होता है आपका डिफरेंस किस किस के बीच में? ऑटोनॉमी के बीच में और सेसेशन के बीच में. फाइन, आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, अब last topic of this chapter is special provisions. What are these special provisions that we are going to discuss today? So let us start now. The most extraordinary feature of the federal arrangement created in India is that many states get a differential treatment. जब हम लोगों ने ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये मोस्टली उस टाइम की बात हो रही है कि हमने क्या बनाया कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी कंट्री की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर जो आपको मे बी किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में ना मिले. वो क्या है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको कुछ डिफरेंट वे में ट्रीट किया जा रहा है. Got it? We have already noted in the chapter on legislature that the size and population of the each state being different, right? क्या होता है? हर एक स्टेट का पॉपुलेशन अलग होता है, साइज अलग होता है, एंड इज asymmetrical. asymmetrical क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल्सो. मतलब जब आप उसको डिवाइड करो तो दो पार्ट्स में अगर इक्वल हो जाता है वो तो सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल नहीं डिवाइड होएगा. आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में. एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड इन द राज्यसभा. एसिमेट्रिकल का मतलब अब क्या हुआ कि हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया, लेकिन सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड इन द चैप्टर ऑफ लेजिस्लेचर कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स दे विल गेट रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. So there is a asymmetrical representation. So while ensuring minimum representation to each of the smaller state, this arrangement also ensures that larger states would get more representation. और ये बिल्कुल natural thing है. क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा स्टेट है, मान लो यूपी जैसा स्टेट है, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. गोवा जैसा स्टेट बहुत छोटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ना. तो हमारी कंट्री के बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन को तो अकेला यूपी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फॉर दैट वी हैव डन द अरेंजमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे एटलीस्ट हर एक स्टेट को ना मिनिमम रिप्रेजेंटेशन तो मिल ही जाए. बट जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है उनको क्या होना चाहिए? दे शुड गेट मोर रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर लेजिस्लेचर. So in the case of division of powers too, the constitution provides a division of powers that is common to all the states. और यहां पर भी पावर ऑफ डिवीजन में, डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कॉमन है सभी के लिए. मतलब पावर तो सभी के लिए होती है ना, कि हमारी कंट्री में किस चीज के लिए स्टेट सेंटर पर डिपेंड रहेंगे, उन चीजों में हमने पावर क्या किया? वी हैव ट्राइड टू डिवाइड इट प्रॉपर्ली इक्वली. And yet the constitution has some special provision for some special states.
some states given their peculiar social and historical circumstances. लेकिन फिर भी हम लोगों ने although we have tried कि नहीं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, but even then what is happening? Even then we are able to notice that some states, because of their social condition, because of their composition and because of their historical aspects, वो क्या कर रहे हैं? Historical circumstances, वो क्या करते हैं? They are enjoying or they are having some special type of rights, some special type of powers. There are some special provisions related to them, right? So most of the special provisions pertain to northeastern states. और ये सबसे ज्यादा, अब देखो, I have told you the concept of chicken neck, I think. अब देखो क्या होता है, आपके मैप में आप लोग देखना, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जब आप मैप को ना अच्छे से विजुअलाइज करते हो, व्हाट यू विल बी एबल टू सी, लेट मी शो यू द मैप ऑफ आवर कंट्री. इट इज इन द चैप्टर ओनली. वेट अ सेकेंड. व्हेन यू सी ना, यस, दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री. अब देखो, दिस इज भूटान ना, दिस इज भूटान, सिक्किम, गैंगटॉक, राइट. अब देखो, ये बांग्लादेश है, दिस इज भूटान, और ये वाला जो पाथ आपका, दिस पाथ ओनली ऑन विच आई एम मूविंग द कर्सर, दिस पाथ, दिस पाथ बेसिकली इट इज नॉन एज चिकन नेक. अब देखो, चिकन नेक क्यों बोला जाता है? इफ यू सी कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, यहां से अगर ये वाला पार्ट है, ये जो डिस्टेंस अगर आप लैंड पे भी देखते हो ना, इट इज 22 किलोमीटर ओनली, ब्रॉडवे में 22 किलोमीटर. नाउ थिंक, इसको चिकन नेक क्यों बोलते हैं? सोचो, अगर कोई कंट्री इस 20 किलोमीटर को कैप्चर कर ले, तो देखो क्या होगा, हमारी ये वाला इंडिया पूरा सेपरेट हो जाएगा और ये वाला इंडिया पूरा सेपरेट हो जाएगा. समझ आया? और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए इन लोगों के माइंड में कई बार ऐसा फील आता है दैट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैव वी डन, वी हैव डन सम स्पेशल प्रोविजंस. For what? We have done special provision to make them feel that they are also the part of our country, ना? Got it? इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, देखो, most of the special provision pertain to north eastern states, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एक्सेट्रा. और देखो क्यों, largely due to their sizable indigenous tribal population with a distinct history and culture. और रीजन क्या है, हम लोगों ने उनको जो स्पेशल प्रोविजन दिए, बेसिकली उसका रीजन क्या है, उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका साइज है, ऑफ कोर्स उनकी सेपरेट हिस्ट्री और सेपरेट कल्चर है. Got it? So that's why what we will have to do, we will have to give them special powers, ना, so that the people can also feel that yes, we are the part of India. समझ आया? मतलब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, that's why we are doing the same thing. क्या करते हैं हम लोग कि हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम हो कि हर एक स्टेट एटलीस्ट पावर्स को एंजॉय करे, वो फील करे दैट although we are having federal structure but I am also important, है ना. ये सिस्टम आप लोग पूरे के पूरे सिस्टम में देखोगे, हमारी कंट्री के हर एक प्रोविजन में देखते हो. So in the time period of federalism also we are having the similar thing. So however these provisions have not been able to stem alienation and the insurgency in the parts of the region. अब देखो क्यों, लेकिन ये चीजें क्या है, ये प्रोविजन देखो, एलिनेशन आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, एलिनेशन आप लोगों ने ना जब 10th क्लास में चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ा होगा ना, देन यू मस्ट हैव स्टडीड फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग. बेसिकली एलिनेशन क्या होता है, जब लोगों के माइंड में ना ये फील आना शुरू हो जाता है दैट वी आर सेपरेट, अलग होने की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, राइट. उस वाली फीलिंग को आप क्या कंसीडर करते हो, उस वाली फीलिंग को आप कंसीडर करते हो इन एलिनेशन. और कब आप लोगों ने पढ़ा था इस चीज को, अगर आप लोगों को याद हो तो इन द केस ऑफ श्रीलंकन बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड, है ना, यू हैव अंडरस्टूड कि लोगों के माइंड में जब वो सिंहलाज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, है ना, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोविजंस है ये एलिनेशन और वो सारी की सारी चीजों के लिए नहीं है, एंड द इंसर्जेंसी मतलब रिवॉल्ट, राइट. हालांकि ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या हुई है, ये नहीं हुए किसके रिगार्डिंग, उनको स्टॉप करने में. गॉट इट? उनको स्टॉप करने में सारी की सारी चीजों को, क्योंकि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं फिर भी होती रहती वो चीजें, है ना, क्योंकि क्या है कि हमारी कंट्री में वो चीजें डिमांड फिर भी होती रहती है, इंसर्जेंसीज फिर भी होती रहती हैं. स्पेशल प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर हिली स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड सम अदर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड तेलंगाना, इन सब चीजों के लिए. मतलब ये सारी की सारी चीजें, however these provision have not been able, वो सारी की सारी चीजें एलिनेशन और इंसर्जेंसी पार्ट्स के लिए
हम लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा नागालैंड के रिगार्डिंग, अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूज सुने तो नागालैंड के रिगार्डिंग वृहद नागालिम, लार्जर नागालिम, नागालैंड को उसमें बेसिकली आसाम का एरिया मिला के वो क्या करते हैं, लार्जर नागालिम की डिमांड करते हैं, राइट। तो मतलब वो चीजें चलती रहती हैं, ऑल्दो वी हैव गिवन देम पावर्स। और कुछ ऐसी ऐसी स्पेशल पावर्स गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना, ये सारी की सारी चीजें एंजॉय करते हैं, राइट। अब देखो, ओ व्हाट इज शी सेइंग, आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दे मीन्ड बाय इंटेलिजेंट एंड बैलेंस डिजाइन इन द फर्स्ट चैप्टर। अब देखो इंटेलिजेंट क्यों, अब आपको भी समझ आया होगा ना, बिकॉज एवरी पोजिशन, every situation that was visualized by the framers of our constitution, and after that they have tried to make a balance for each and every situation. That's why it was intelligent and balanced design. अब देखो बैलेंस डिजाइन कैसे, कि हम लोगों ने ये देखा कि यूपी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, राज्यसभा में भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दिया, गॉट इट। तो लोकसभा में वहां ज्यादा मेंबर्स जाएंगे। दिस इज द बैलेंस डिजाइन. It means when the people are able to think that yes, according to our situation, according to our position, we are getting representation. और देखो सोसाइटी में डिमांड्स कब उठती हैं, तभी उठती है ना जब लोगों को लगता है कि हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा. फाइन, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गॉट इट. अब देखो, अब एक ऐसा ही केस दैट इज जम्मू कश्मीर, कि किसके रिगार्डिंग, विच इज हैविंग स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पावर्स, है ना. ऑल्दो वी हैव, यू कैन से वी हैव सॉर्ट आउट दिस इश्यू, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हम लोगों ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, राइट. लेकिन जम्मू कश्मीर का कंटेक्स्ट क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. अब देखो, द अदर स्टेट विच हैड अ स्पेशल स्टेटस वाज जम्मू एंड कश्मीर, दैट वाज आर्टिकल 370, जो एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर एंजॉय कर रहा था. जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द लार्ज प्रिंसली स्टेट्स. और क्या था जम्मू कश्मीर, एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था. जब आप लोग 12th में सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हो, लेकिन आप सभी को पता होगा एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में क्या हुआ था, मोर देन 500 क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे. मतलब प्रिंसली स्टेट्स का मतलब देखो, कुछ पार्ट तो ऐसे थे, अगर आप लोगों ने मैप रीड किया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर के, आप लोगों ने क्या रीड किया, कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, वो क्या थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे. बट नाउ सम प्लेसेस वर जस्ट लाइक दैट ऑल्सो, कि जिन पर ना इंडियन किंग्स का रूल होता था. दे वर नॉन एज प्रिंसली स्टेट्स, और जम्मू कश्मीर वाज वन आउट ऑफ दैम, राइट. क्या था, लार्ज प्रिंसली स्टेट था, विच हैड द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया और पाकिस्तान और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट. और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि हम लोग क्या करें, आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमें इंडिया फॉर्म करना है, हमें यूनाइटेड इंडिया बनाना है. लेकिन व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज द प्रोविजन फॉर दैट, जो प्रिंसली स्टेट थे ना, इनको फ्रीडम दे दी. क्या फ्रीडम दे दी, कि आप लोग या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर इंडिपेंडेंट रह जाओ. दैट वाज द सिचुएशन. और ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 370. और आप लोगों को अगर याद हो 2019 में हम लोगों ने इसी आर्टिकल को रिमूव किया था, याद आ रहा है, जब हमने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया स्टेट की कैटेगरी से निकाल के. फिर क्या हुआ, however immediately after independence in October 1947 Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir. लेकिन देखो, जैसे ही हम लोगों ने फ्रीडम दे दी ना भाई, कि आप लोग इंडिपेंडेंटली रहो या इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाओ, तो ऐसे में क्या किया, पाकिस्तान ने सोचा नहीं, ये तो गलत बात है, कश्मीर क्या होना चाहिए, कश्मीर शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. ऐसे में पाकिस्तान ने क्या कर दिया, जैसे ही हम लोग मतलब पार्टीशन से अभी एक टाइप से उभरे भी नहीं है ढंग से, तो क्या कर दिया, देयर वॉज द अटैक फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान. और क्यों, जस्ट टू कैप्चर कश्मीर. एंड दिस फोर्स्ड द महाराजा हरी सिंह टू आस्क फॉर इंडियन हेल्प एंड सीडेड टू इंडियन यूनियन. अब फिर क्या हुआ, अब हम लोग भी ऐसे तो नहीं बैठे थे, है ना, हम लोग भी इसी कहीं ना कहीं ऐसे ही कहीं ना कहीं चांस की वेट में थे. तो अब जो हरी सिंह था बेसिकली, अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि तो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अकेला तो भी फाइट कर नहीं सकता है, प्रिंसली स्टेट है, इतनी पोजीशन नहीं होगी, इतनी पावर नहीं होगी. सो दैट टाइम ही वाज नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन दैट ही हैड टू आस्क हेल्प फ्रॉम इंडिया, है ना. और फाइनली इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी ये किया कि हम लोगों ने उस पर ऐसे ही हेल्प नहीं दे दी. हम लोगों ने क्या बोला, दैट वी विल हेल्प यू, डेफिनेटली वी विल सेंड आवर मिलिट्री, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके सामने क्या कंडीशन रखी, दैट फर्स्टली यू विल हैव टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन.
आपको क्या साइन करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मतलब होता है विलय पत्र, कि आपका विलय हो गया है, मतलब कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया है। समझा? और उस बेस पे हम लोगों ने क्या किया? अपनी मिलिट्री भेज दी, और हम लोगों ने फाइनली क्या कर दिया? हम लोग कश्मीर से एबल हो गए पाकिस्तानी मिलिट्री को, मिलिटेंट्स को बाहर निकालने में। राइट? फिर क्या हुआ? मैनी ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन द वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट जॉइन पाकिस्तान, बट J&K वाज एन एक्सेप्शन। राइट? क्योंकि देखो क्यों, और ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि क्यों जा रहा था कश्मीर, पाकिस्तान क्यों चाह रहा था कि कश्मीर उसका पार्ट बने? क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर की स्ट्रक्चर को देखते हो ना, जो 2019 से पहले हमारी जम्मू कश्मीर था, जम्मू में बेसिकली क्या आपको सिचुएशन मिलती है? जम्मू में अलग टाइप की कम्युनिटी स्ट्रक्चर है। जम्मू में मोस्टली लोग आपको कौन से मिलेंगे? हिंदू कम्युनिटी के मिलेंगे। कश्मीर में कौन सी कम्युनिटी? मुस्लिम कम्युनिटी। लद्दाख इज ऑल्सो द सिमिलर, जहां पर आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे और मुस्लिम मिलेंगे। इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया कहीं ना कहीं कंसीडर होता है, इसलिए क्या हो गया? इसीलिए पाकिस्तान के लोग चाह रहे थे कि इट शुड बी ज्वाइन विद पाकिस्तान ओनली, क्योंकि वो क्या है? वो एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। राइट? अब फिर क्या हुआ? अब हम लोगों को उनके माइंड में भी तो, जो हमारे कश्मीर के पीपल हैं, उन लोगों के माइंड में सिक्योरिटी जनरेट करानी है, दैट यस वी आर हैविंग अटेंशन ऑन यू। Okay, so under these circumstances, it was given much greater autonomy by the constitution. और फाइनली हम लोगों ने क्या किया? ये सारे प्रोविजन करने के लिए उनको बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी। According to Article 370, the concurrence of the state was required for making any law in matter mentioned in the union and current list. concurrent list. फाइनली देखो हम लोगों ने, आपने पढ़ी थी ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना? लेकिन यहां इतनी ऑटोनॉमी दे दी आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू कश्मीर को, कि मान लिया कोई लॉ जो हमारी पूरी की पूरी कंट्री में बन रहा है, एंड दैट वी वांट दैट इट शुड बी एप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर आल्सो, डेफिनेटली, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। बट आर्टिकल 370 के अंडर क्या है कि अगर हमें वो लॉ इंप्लीमेंट करना भी है ना कंट्री में, कश्मीर में, तो पहले वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास करेगी। तब वो क्या होगा? उनकी असेंबली की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, और तभी वो चीजें, चाहे वो यूनियन लिस्ट में है चाहे वो कंकरेंट लिस्ट में है, ओनली देन दे कैन बी द पार्ट ऑफ कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ आया? दिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अदर स्टेट्स। और ऑफ कोर्स ये सिचुएशन बहुत अलग है, क्योंकि और स्टेट्स में तो हम क्या कर देते हैं? अपनी जबरदस्ती टाइप से मर्जी थोप देते हैं। राइट? अब फिर क्या हुआ कि in the case of other state, the division of power as listed through the three list automatically applies. पढ़ लिया ना आपने? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, बाकी स्टेट में ये है, लेकिन जम्मू कश्मीर क्योंकि स्पेशल ऑटोनॉमी मिली हुई इसको। So in the case of Jammu and Kashmir, the central government had only limited powers, and other powers listed in the union list and concurrent list could be used only with the consent of state government. समझ आया? मतलब इतनी पावरफुल हो गई वहां की गवर्नमेंट कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है ना, इवन देन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन कश्मीर। क्यों? क्योंकि उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। एंड दिस हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और ये क्या दिखाता है? कि जम्मू कश्मीर की बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है। समझ आया? मतलब चाहे कुछ भी करो आप इंडिया में, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल कब होंगी? जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्लाई करना चाहेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि यस अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन इट इज फाइन एंड इट कैन बी एप्लीकेबल। तो अब देखो एक ही कंट्री में लोग रह रहे हैं, राइट? लेकिन फिर प्रॉब्लम तो बाद में क्रिएट होंगी ना, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि वी आर हैविंग 28 स्टेट्स, तो क्यों भाई एक कोई स्पेशल प्रोविजन क्यों? So, देखो earlier there was a constitutional provision that allowed the president with the concurrence of state government to specify which part of union list should apply to the state. और पहले क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था जिसने अलाव किया प्रेसिडेंट को कि क्या विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट शुड अप्लाई टू द स्टेट। कि पहले क्या था? हमारे प्रेसिडेंट के पास एक प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? विद द एक्सेप्टेंस स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा पार्ट है यूनियन लिस्ट का जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो सकता है। राइट? एंड द प्रेसिडेंट हैड इशूड टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन कॉन्करेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ J&K मेकिंग लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ही पावर थी, तो फाइनली प्रेसिडेंट ने क्या किया? उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू कर दिए। राइट? किसके साथ बात करके? वहां के गवर्नमेंट के साथ बात करके। और क्या किया? मेकिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट। और क्या कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में।
As a result, though Jammu Kashmir had a separate constitution and a flag, the parliament's power to make laws on subject in the union list was fully accepted. अब देखो फिर क्या हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का अपना फ्लैग, मतलब देखो हमारी कंट्री का पार्ट है, बट इवन देन सारी चीजें अलग, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनका फ्लैग अलग है. लेकिन फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के पास हालांकि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था, बट इवन देन पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट वाज फुली एक्सेप्टेड. हालांकि ये चीज थी कि अकॉर्डिंग विद द कंसेंट विद द डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हालांकि ये चीजें मानी गई कि यस, कि वहां पर हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स को बनाने की. राइट? फिर क्या हुआ, the remaining difference between the other states and the state of Jammu and Kashmir were that no emergency due to internal disturbance could be declared in Jammu Kashmir without the concurrence of the state. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज तो ये, हम कंट्री में कुछ भी इंप्लीमेंट करें वो वहां तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक वहां की स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाह रही. और अब उससे भी बड़ी चीज क्या हो गई, अब उससे भी बड़ी चीज ये कि अगर हमें लगता है ना कि जम्मू कश्मीर का सिस्टम प्रॉपरली नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, वहां की गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा. राइट? मतलब अगर इमरजेंसी भी लगानी है तो इमरजेंसी के रिगार्डिंग भी वहां की गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा. राइट? और इसने क्या कर दिया, इसने हमारी गवर्नमेंट की पावर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा श्रिंक कर दिया, क्योंकि अब जब वहां भी इमरजेंसी नहीं लग सकती है गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना, पार्लियामेंट की कंसेंट, मतलब पार्लियामेंट की कंसेंट है तब भी नहीं लगेगी. राइट? द यूनियन गवर्नमेंट कुड नॉट इंपोज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग सकती. राइट? एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिड नॉट अप्लाई इन जम्मू कश्मीर. जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ऑल्दो दे आर नॉट जस्टिसेबल, बट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे प्रोविजन भी कर सकती है ना जहां फंडामेंटल राइट्स थोड़े हम क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं, सो दैट वी कैन गिव राइट्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी. बट वहां पे क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी अप्लाई नहीं हो सकते. Amendment to the Indian Constitution, that is Article 368, could apply in concurrence with the government of Jammu and Kashmir. और दूसरा क्या, जो हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी कब अप्लाई होंगे, वो सिर्फ तब अप्लाई होंगे जब हमारी गवर्नमेंट उनके साथ डिस्कशन करेगी और वो उनको एक्सेप्टेंस देंगे. समझ आया? दिस वाज द सिचुएशन. फिर क्या हुआ, अब देखो एक ही कंट्री का पार्ट, राइट? ये तो वैसी बात होगी ना, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, बट एक ने आपको इतना स्पेशली ट्रीट कर दिया. आप क्या कर रहे हो, आप उसके पेरेंट्स से पूछ पूछ के उसको वर्क दे रहे हो, मतलब आपके टीचर्स, उसके पेरेंट्स अगर मना कर देते तो आप वर्क ही नहीं दे रहे हो, मतलब उसकी पेरेंट्स की परमिशन के बिना उनको डांट भी नहीं सकते हो. समझा? उनके पेरेंट्स की परमिशन के बिना उनसे कुछ वर्क नहीं करा सकते हो. ये ऐसी सिचुएशन हो रही है कि हम वहां की गवर्नमेंट के पूछे बिना वहां कुछ कर नहीं सकते, इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, वहां आर्टिकल 368 वर्क नहीं कर सकता है. राइट? वहां कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता है. गॉट इट? सो ऐसी सिचुएशन थी. फिर क्या हुआ, एट प्रेजेंट द स्पेशल स्टेटस गिवन अंडर 370 नो लॉन्गर एग्जिस्ट. फिर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन द लीडरशिप ऑफ बीजेपी मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमने क्या किया, फाइनली क्या किया, बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द स्टेट हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. अब हमने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर, वो जो मसला था ना कि स्टेट है अलग से, इसको इतनी ऑटोनॉमी मिलेगी, अब वो चीजें ही खत्म हो गई. क्यों? क्योंकि ये बन गई यूनियन टेरिटरी. देखो यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, हैव यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड एवर बिफोर? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या हो गया, ऐसी टेरिटरी जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका है, यूनियन का है. ये वो एरियाज होते हैं जो डायरेक्टली अंडर दी कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट चलते हैं. हालांकि इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है, बट इवन देन ये किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. समझे? इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी. इसको अगर आप हिंदी में देखते हो, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर रूल किसका है, केंद्र का है डायरेक्टली. राइट? तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, वो जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो खत्म कर दिया. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. और ये जो अरेंजमेंट है ये कब से इफेक्ट में आया, फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019. और इसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, उन सारी की सारी चीजों को खत्म कर दिया जो स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए थे, दैट आल्सो वी हैव, यू कैन से कंप्लीटली अबॉलिश दैट. राइट? आई होप ये आपको पूरा समझ आया कि स्पेशल प्रोविजन का मतलब क्या होता है. स्पेशल प्रोविजन का मतलब होता है कि विद इन द कंट्री ओनली सम स्टेट्स विल बी इंजॉइंग सम स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटस. एग्जाम्पल यू हैव अंडरस्टूड जम्मू कश्मीर कंटेक्स्ट. राइट? जिसको बाद में हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर दिया, कश्मीर से आर्टिकल 370 हम लोगों ने रिमूव कर दिया.
गॉट इट? सो अब देखो क्या है कंक्लूजन. फेडरलिज्म इज लाइक अ रेनबो where each color is separate yet together they make a harmonious pattern. of course रेनबो की तरह हमारी कंट्री है, हर एक का अपना सेपरेट कल्चर है, हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, बट इवन देन जब आप उनको मिला दोगे ना, वो रेनबो की तरह बहुत अच्छी चीजें प्रेजेंट आपके सामने करते हैं, है ना, कलरफुल व्यू आपके सामने प्रेजेंट करते हैं. फेडरलिज्म हैज टू कंटिन्यूअसली मेंटेन अ डिफिकल्ट बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. और फेडरलिज्म को क्या करना पड़ता है? एक डिफिकल्ट बैलेंस, जो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना, वो मेंटेन करके रखना पड़ता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स. No legal or institutional formula can guarantee the smooth functioning of a federal polity. Although I have told you ना कि हमारी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड ही नहीं लिखा हुआ है, तो लीगली ऐसी कोई चीजें नहीं हो सकती कि वो स्मूथ फंक्शनिंग की बात करते हैं फेडरल पॉलिटी की. Ultimately, the people and the political process must develop a culture and a set of values and virtues like mutual trust, toleration, spirit of cooperation. Right? अब ये क्या है? हमने ऑल दो वो कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं किए कि फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग ये चीजें होंगी ही होंगी, बट फिर भी क्या है, क्योंकि हम लोग कंट्री का पार्ट है ना, हमें पता है कि कैसे हमारी कंट्री के सिस्टम को गवर्न करना प्रॉपरली. इसलिए फेडरलिज्म कब वर्क करेगा? जब हमारी कंट्री में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, कोऑपरेशन होगा और एक दूसरे के लिए टॉलरेंस भी होगी. हम लोग देखो, हम लोग ये ना फील करें कि अगर किसी कोई स्टेट छोटा है, मान लिया हमने उसको ऑटोनॉमी दे दी, तो हम ये ना सोचे कि हमारा स्टेट बड़ा है, हमें ज्यादा ऑटोनॉमी की रिक्वायरमेंट है. हम ये सोचे क्योंकि वो छोटा है, उसको डेवलपमेंट के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की रिक्वायरमेंट है. तो टॉलरेंस और एक टाइप से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. राइट? फेडरलिज्म सेलिब्रेट्स बोथ यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी, क्योंकि वो फेडरलिज्म दोनों चीजें इंजॉय करता है, दोनों चीजों को सेलिब्रेट करता है. वो हमारी यूनिटी को भी सेलिब्रेट करता है और हमारी डाइवर्सिटी को भी. दैट्स व्हाई वी से कि हमारा फेडरलिज्म यूनिक है, बिकॉज वी आर हैविंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी. Right? And national unity cannot be built by streamlining and alienation and tends finally to destroy unity. क्योंकि हमारी कंट्री की चीजें कब तक वर्क करेंगी? जब तक हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, वरना क्या हो जाएगी? हमारी यूनिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लोगों के माइंड में क्या फीलिंग आएगी? एलिनेशन, कि नहीं हमें तो सेपरेट ही सेपरेट होना है, वो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी. And are responsive polity sensitive to diversity and to the demands for autonomy can alone be the basis of cooperative federalism. और इसीलिए फाइनली क्या जरूरत है? एक पॉलिटी सेंसिटिविटी, कि हम सेंसिटिव हो हमारी डाइवर्सिटी की तरह, डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, कि यस ये भी हमारे ही कंट्री का पार्ट है. अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई मान लिया मणिपुर जैसे स्टेट से हमारे यहाँ आता है, हम लोग क्या करते हैं, आधे से ज्यादा इंडियंस को क्या बोलने लगता है? चाइनीज बोलने लगता है. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस. राइट? और फिर उसकी वजह से लोगों के माइंड में क्या आता है? दैट वी आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली. राइट? गॉट इट? आसाम को अगर आप देखते हो तो आसाम इंडिया से ज्यादा खुद को चाइना के क्लोज फील करता है, क्योंकि डिस्टेंस इश्यू बहुत कम है वहां से. तो हमें क्या करना है? हमें उस डाइवर्सिटी को ना ऐसे ट्रीट करना बड़े सेंसिटिव मैनर में, ताकि हम उनको भी फेथ में ले सकें, ट्रस्ट में ले सकें, और क्या कर सकें एंड टू द डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी. और जो हमें ऑटोनॉमी की डिमांड करनी है ना, वो इसलिए नहीं कि मेरे को ज्यादा चाहिए तो मैं डिमांड करूं, आपको ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए तो आप डिमांड करो. नो, हम डिमांड किसके रिगार्डिंग करें? जब हमें लगता है कि वो जो डिमांड्स है ना हमारी, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, और वो डिमांड्स हैं दे आर हैविंग रैशनल बेसिस, तो हम डिमांड करें. तो ऐसे में क्या होगा? हमारा फेडरलिज्म प्रॉपर्ली वर्क करेगा एंड इट कैन ओनली बी द बेस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. समझा? मतलब कोऑपरेशन हम लोग शो करें विद इन ऑल द स्टेट्स. Right? I hope chapter is crystal clear from my side to you. But if you are having doubts, you can ask your doubts in you can say comment section. We will meet in next video. Till then, keep learning. But if you thought that video is beneficial for you, what you can do? Please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video with the NCERT solution of the chapter. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.